So beta, for exams we are to revise the chapters. For this, first worksheet will be of lesson number 5 and lesson number 7. Lesson number 5 we have already done. Lesson 7 we are to revise. Yesterday we did the chapter. Is there any doubt? No. No doubt? No. Okay. Now when we will revise the question answers, then many doubts will be there. Many hands will be up for the doubts when I will ask you the answers. So now first question is, how many parts of Western Coastal Plains divided into? Means Western Coastal Plains कितने parts में divided है? Raise your hands. This girl. आप बच्चे chat box में लिखो. Yes. पहले मैंने पूछा how many, कितनी है? Question सुनो ना पहले. Yes. क्वेश्चन में से देखो. There are 3 coastal plains. Raise your hands only. Nobody will talk. Nobody will speak without my permission. Please. Last go. Yeah, Western Coastal Plains are divided into 3 parts. Question में लिखा हुआ है. How many parts of Western Coastal Plains divided into? The Western Coastal Plains are divided into 3 parts. Gujarat Coast, Konkan Coast, Malabar Coast. गुजरात सबसे ऊपर है तो पहले हम उसी का नाम लिखेंगे. So who will write Gujarat Coast here? So that spellings can also be changed. White chalk. ये स्पेलिंग मिस्टेक तुम लोग बार बार करते हो. जे के बाद ये यार. Students are writing in the chat box. Very good. बेटे मालाबार कोस्ट 2 times लिख दिया, गुजरात कोस्ट लिखा नहीं. साक्षी आपने बेटे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. You are to write full form. कोस्ट में COAST होता है. ए मिस कर देते हो तुम लोग. सेकेंड, इसी के नीचे. हाँ जी. रॉन्ग स्पेलिंग्स. कोकन बन गया ये तो. कोकन करेक्ट करो इसको. मिश्ता शी विल करेक्ट इट. वेरी गुड. Konkan coast. Okay. Third one is, next go. उसके साथ क्यों नहीं लिख रहे हो कोस्ट? सारे बच्चे नीचे नीचे लिखी जा रहे हैं ना. गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मलाबार. ओके. अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए तो फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स.
There are Yes. the eastern coastal plains are divided into two coasts. Two coasts. Two coasts. Which one? Then northern Sarkar, Coromandel. Very good. Northern Sirkars and Coromandel coast. Okay. ध्यान से पढ़ना है. वेस्टर्न कोस्टल पूछा है कि ईस्टर्न कोस्टल पूछा है. Clear? Okay. Next is what is a lagoon? What is a lagoon? Yes, anyone? Chesta. A shallow water lake. Shallow मतलब होता है जो डीप नहीं होता. ठीक है? A shallow water lake which is separated from the sea. Sea है अरेबियन सी सारा. अरेबियन सी से सेपरेट होकर के एक छोटी सी लेक बन जाती है जिसमें पानी इतना डीप नहीं होता. बैक वाटर लेक्स उसको बोलते हैं, जो कि सैंड से या किसी रॉक के पीस से अलग हो जाती. क्लियर? A shallow water lake separated from the sea by an area of rock or sand. या तो सैंड से या फिर रॉक से वो सेपरेट हो जाती है, सी से अलग हो जाती है. क्लियर? Yes. अच्छा, कैन यू give example where can we find the lagoons? कहाँ पे हमें लेगून्स मिल सकते हैं? यस, चेष्टा. मालाबार कोस्ट. ये क्वेश्चन भी है ना टियाना वाला, कि टियाना लेगून्स देखना चाहती है, उसको कौन सी कोस्ट पे जाना पड़ेगा? मालाबार कोस्ट. क्लियर? Yes. Good. Okay. Now, can you tell me the name of the smallest state of India? This girl. Goa. Okay. Goa is the smallest state of India. Do you know which is for which thing Goa is famous? Why do tourists come here? Yes, Harnoor. Okay, to see the beaches, beauty of beaches देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं. Tourist means the people who come here to see the things or monuments or the beaches. हम अपने यहाँ पे रहते हैं, we are the permanent residents of पंजाब, है ना, या फगवाड़ा. बट अगर हम कहीं घूमने जाएं तो हम क्या बन जाएंगे? टूरिस्ट. या कोई गोवा का बंदा यहाँ पे घूमने आता है पंजाब में, गोल्डन टेम्पल देखने आता है, जलियांवाला बाग देखने आते हैं, तो हम उसको टूरिस्ट कहते हैं. वो क्या होते हैं? टूरिस्ट, जो किसी टूर पे आते हैं. पंजाब का टूर, गोवा का टूर, तमिलनाडु का टूर. तो वो जब टूर करने आते हैं, वहां की चीजें देखने आते हैं, वहां को एक्सप्लोर करते हैं, उस प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको हम टूरिस्ट बोलते हैं. क्लियर? अब गोवा में क्या चीजें की फार्मिंग होती है? कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है? यस. Can you write, Harveer? Right here. The crops grown in Goa. Simple name लिखो बस, sentence, कोई बात नहीं. The major crops grown in Goa, ये तो क्वेश्चन में से ही है, are coconut, okay, वो तो गुजरात में,
बेटे यू आर टू राइट मैक्सिमम. अगर एक आधी भूल भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कई बार क्वेश्चन आता है नेम एनी टू, तो फिर उसमें टू ही लिखनी होती है. नेम एनी 3 क्रॉप्स ग्रोन इन कोकोनट्स, राइस, कैश्यू नट्स, मैंगोज. गुड, क्लियर. राइस, क्योंकि कोस्टल एरिया है ना, राइस जो है ना उसको पानी की बहुत जरूरत होती है, तो ज्यादातर राइस जो है ना कोस्टल एरियाज में ग्रो किया जाता है. कोस्टल प्लेन्स के अंदर सॉइल भी फर्टाइल होती है और पानी भी मिल जाता है, इसलिए कोस्टल एरियाज में राइस को ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में आपने बताना है. यस, हु विल टेल अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? कहाँ पे है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? between इसको कहते हैं between the eastern Ghats and Bay of Bengal. अब देखो किसी का नेम है, वाटर बॉडी का नेम है ना, तो मैंने कैपिटल में लिखा है. ईस्टर्न घाट्स भी किसी का नाम है, घाट्स का नाम है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग. यू मस्ट राइट इन कैपिटल. इज इट क्लियर? यस. Wait. Next is these plains stretch from West Bengal to Tamil Nadu. अब आपने स्टेट्स बतानी है. कल हमने करा था ना, वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक. वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. So these plains stretch from West Bengal to Tamil Nadu. इसको वेस्ट बंगाल इसलिए कहते हैं, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन में है. ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. बांग्लादेश जो है ना, पहले जब पार्ट ऑफ इंडिया होता था ना, तब वो ईस्ट बंगाल कहा जाता था उसको. हमारे इंडिया में जो था वो वेस्ट बंगाल था, तो अभी तक उसका नाम वेस्ट बंगाल ही चल रहा है, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन में. कोई बात. गुड. चले, अब इन कोस्टल प्लेन्स के बारे में एक और खासियत है कि ये वाइड है. These are wider. ये थोड़े चौड़े हैं. These are wider. ये थोड़े चौड़े हैं. वेस्ट वाले नैरो है. वेस्ट में नैरो है, ईस्ट में वाइडर है. ओके, कौन बताएगा ये 3 पॉइंट्स वन बाय वन? One by one. Students sitting at home, who can tell? पहले कैमरा ऑन करोगे तभी मैं उसको चांस दूंगी. फर्स्ट पॉइंट, चले आप आओ, इधर आके बताओ सबको. फर्स्ट पॉइंट, who will tell here? Loudly बोलो. The eastern coastal plains are located between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. Yes, the eastern coastal plains are located between the Eastern Ghats and Bay of Bengal. Okay, second point, Viren. Unmute yourself, Viren. Good morning, ma'am. Good morning. These plains are wider than West Bengal to Tamil Nadu. These plains are wider These plains stretch from West Bengal to Tamil Nadu. Good.
Third point, Sargon will check. Sargon, third point बोलो. Speak. These plains are wider than the western coastal plains. Speak loudly, bete. Sargon. These plains are wider than the western coastal plains. These plains are wider than the western coastal plains. ये वाले plains wider हैं, चौड़े हैं. Okay, good. Next is, why are the coastal plain important? Important का मतलब होता है उनके uses बताने. ऐसे भी आ सकता है. Why are the coastal plains useful to us? How are the coastal plains useful to us? ये हमें किस तरह हेल्प करते हैं, कैसे हम इनको माने कि ये हमारे लिए बड़े लाभदायक है. यूजफुल का मतलब लाभदायक है. यू आर नॉट लर्निंग. सो फर्स्ट पॉइंट, हु विल टेल? First point, read from the notebook and then speak. First point bolo. Yes, this girl. Come here. Come in front of the camera. Speak here. Remove कर लो mask. Camera को देखो. फिर बोलो. They play an important role in trade due to the presence of ports. पहले तो बेटे इनकी फर्टाइल सॉइल के बारे में बोलना था ना, कि यहाँ की सॉइल बड़ी फर्टाइल होती है. मैंने अभी बताया है कि ये कोस्टल प्लेन्स जो है राइस के लिए बहुत फेमस है. राइस बहुत ज्यादा ग्रो करता है. राइस बाउल ऑफ कोस्टल प्लेन्स को तो राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. क्लियर? तो यहाँ पे लैंड बड़ी फर्टाइल है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? The coastal plain, these coastal plains have fertile soil, which is good for growing crops, agriculture. Yeah, है ना? You can write any crop also. So first point is fertile soil. Okay? चले मैं लिखती हूँ यहाँ पे, hints आपको पता चल जाएंगे. First is fertile soil. Second point, raise your hand and speak. So many times I have to tell you. Okay, Gaurika Makkar, you will tell second point. I'm going to unmute you. They play an important role due to the presence of ports. ट्रेड होता है यहाँ पे. ट्रेड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स हैं. पोर्ट से ना हैवी मशीनरी शिप्स के थ्रू आ जाती है और बिजनेस जो है वो बहुत सक्सेसफुल है. सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट्स. ओके, थर्ड पॉइंट, कम हियर. Fishing is important. Occupation. Fishing is important occupation. Yes. फिशिंग होती है यहाँ पे. सी के अंदर बहुत तरह की वैरायटी ऑफ फिश होती है. वैरायटी ऑफ फिशेस आर फाउंड इन सी. तो लोग ज्यादातर फिश को पकड़ करके वो बहुत बड़े बड़े नेट गिराते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं और ज्यादातर लोग जो है फिशिंग का ऑक्यूपेशन करते हैं क्योंकि कोस्टल प्लेन में बहुत सारी फिश उनको मिल जाती. क्लियर? So fishing is an important occupation here. Next. हाँ जी. Yes. इधर आके बोलो. Some Regions are very rich in petroleum deposits. बेटे इसको आपने क्रैम नहीं करना है.
रटने की क्या बात है? Many areas in the coastal plains have petroleum deposit. ऐसे भी लिख सकते हो. रीजन नहीं लिखना आता तो एरिया कर दो, ठीक है? Some regions have petroleum deposits. कौन सा रीजन है पेट्रोलियम डिपॉजिट? हाँ जी, कौन बोलेगा? यस. हाँ, नहीं, कोस्ट का नाम अगर पूछना हो तो कोस्ट का नाम, कौन सी कोस्ट में पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलता है? विजेंद्र, हाँ, स्पीक लाउडली. कंकन नहीं है, कोंकण है. कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट में पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहां पे बॉम्बे है, मुंबई के सामने मतलब पड़ता है, सी के अंदर, सी के अंदर है. ओके, कौन सा सी? कौन से सी के अंदर है? अरेबियन सी. क्लियर? हाँ जी, चलिए. और किस लिए फेमस है कोस्टल प्लेन? फिशिंग के लिए. फिशिंग के लिए तो हो गया. ओके ओके. And beautiful sea beaches. Sea beaches के लिए ये कोस्टल प्लेन्स बहुत फेमस है. तो जब हिंट्स लिख लेते हैं ना तो सेंटेंस फॉर्मेशन आप खुद कर सकते हो. Coastal plains have fertile soil, which is good for growing many crops. Coastal plains are famous or they play an important role in trade because it has many ports. Huh? So many ways are there, bete, in which you can write the answer. Fishing is an important occupation in the coastal plain area. Many regions, some regions have many petroleum deposits, like Bombay High in the Arabian Sea, and many sea beaches are present here, which attract many tourists. What? पेट्रोलियम. ये मैनमेड कैसे हो सकता है बेटे? तेल के जो कुएं हैं ना वो नेचुरल है, उसको हम रिफाइन करते हैं, ठीक है? रिफाइन करके उसमें से मिनरल ऑयल निकलता है, उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस जो होती है वो अलग अलग सेपरेट करके रिफाइन करके हमारे पेट्रोल स्टेशन पे आते हैं. क्लियर? So now any doubt? Any doubt? Any doubt? Yes, do you have any doubt, Pulkit? Unmute yourself. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, meaning of agriculture? एग्रीकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग, खेतों में क्रॉप्स को ग्रो करना. स्टूडेंट सिटिंग हियर, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? हाँ, व्हाट? खेती बाड़ी करना. एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप्स को ग्रो करना. हमारा पंजाब तो फेमस है फॉर एग्रीकल्चर. बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है. मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. हाँ, पंजाब में नो. एलुवियल सॉइल इज फाउंड हियर. सॉइल वाला चैप्टर पढ़ा है फिर भी भूला हुआ है. ऑक्यूपेशन मीन्स काम करना. क्या काम करते हैं लोग? ठीक है, पंजाब के ज्यादातर लोग जो है वो फार्मर्स हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है. यस,
बिकॉज वहां पे इम्पैक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश यहाँ का है. सो मैक्सिमम पीपल have come from this area, so they have this Bengalis are inhabitant of this area. Yes, anyone else? Dhairya, unmute yourself. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. मैम डिग्री चैनल का मतलब क्या है? 10 डिग्री चैनल ये नेम है बच्चे, जो इनको सेपरेट करता है. एक वाटर बॉडी है, रिवर चैनल है, जो इसको सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से. ओके मैम. Sarika, unmute yourself. Ma'am, please send Google form, attendance form. Attendance form. Why do you want? In the morning, ma'am has shared. Okay, Vinisha, unmute yourself. Ma'am, please send the attendance form again. Bete, I have not pasted the link. Are you attending the class today only? आपको पता नहीं है अब मॉर्निंग में अटेंडेंस लिंक शेयर होता है सिर्फ. If you have any doubt, then only raise your hand. Don't ask for attendance link. Yes, Virenisha, unmute yourself. मैम जो टेस्ट आना है मैम वो आप ऑरल सुनोगे या मैम रिटर्न आएगा? That will depend. Okay, that we will decide later on. You should prepare the chapters. और अगर आपको 5 लेसन में और 7 लेसन में कोई डाउट है, you can ask. Yes, Sargun. Excuse me, ma'am. मैम जब कोई गोवा से पंजाब में आता है उसको टूरिस्ट कहते हैं. जब कोई पंजाब में ही रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पंजाब के लोग जब पंजाब में ही घूमने जाएंगे, जैसे आप फगवाड़ा में रहते हो, है ना, तो फगवाड़ा के लोग अगर अमृतसर घूमने जा रहे हैं, जलियांवाला बाग देखने जाते हैं या फिर गोल्डन टेम्पल जाते हैं, तब वो भी टूरिस्ट ही होते हैं. ठीक है ना, हम टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं ना, तो जो घूमने जाते हैं लोग वो टूरिस्ट ही होते हैं. क्लियर? जब कोई सिर्फ एक जगह पे रहता है वो तो एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम जाते हैं, हम जैसे फगवाड़ा में रह के फगवाड़ा ही घूमने जाएं, तो that will not be a tourist. Okay. Yes, anything else? They have ports. यहाँ पे बहुत सारी ports हैं. Visakhapatnam is one of them. Yes, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है विशाखापट्टनम. Anything else? सिटीजन का मतलब किसी सिटी में, उस सिटी में रहने वाला या उस कंट्री में रहने वाला. स्केर्सिटी का मतलब कमी, जब पानी कम हो जाता है या उसको कहते हैं वाटर स्केर्सिटी. फूड कम हो जाता है तो फूड स्केर्सिटी. तो स्केर्सिटी मीन्स डेफिशिएंसी या कमी होना. Anything else? Everything is clear now? Are you ready for the assessment? Worksheet B is a part of assessment, है ना? So be ready with your chapter. Even if you have any doubt, I will take your doubts tomorrow or Monday. On Monday also I will take your doubts.